नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। मोहाली में सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत ने 29 रनों से यह मैच जीत लिया। सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारत ने। और जहां तक हम इस मैच की बात करें, सबसे रोमांचक मुकाबला, विश्व का सबसे रोमांचक मुकाबला मोहाली में खेला गया। और मोहाली इस बात का गवाह बन गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी अब तक वर्ल्ड कप के अंदर मैच हुए हैं, उसमें सबसे रोमांचित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 30 मार्च को मोहाली में खेला गया है। Ball outside off stump, and I don't think that's where you should be bowling to Sehwag. And of course, if he does bowl a straight line, he's got no cover on the leg side. More runs on the onside. This time a wristy flick, the result the same. Consecutive boundaries for Virender Sehwag. Well, obviously it's not working for Umar Gul and Shahid Afridi. Crowds absolutely love it. Lovely flick shot through mid-wicket. Timing was superb, the execution was fantastic. बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर को छोड़कर वीरेंद्र सहवाग ने कुछ अच्छे शॉट लगाए। इसके अलावा सुरेश रैना ने 39 रनों की जो पारी खेली है वो काबिले तारीफ थी। 38 रन वीरेंद्र सहवाग ने बनाए, 8 चौके इस पारी के दौरान उन्होंने लगाए। और जिस तरह से उमर गुल की उन्होंने बखिया उधेड़ी, वाकई काबिले तारीफ थी। और जिस तरह का स्टार्ट पाकिस्तान चाहता था वो स्टार्ट नहीं मिल पाया। और अगर भारत की बल्लेबाजी की बात करें, वीरेंद्र सहवाग ने 38 रन बनाए, सचिन तेंदुलकर ने 85 रन बनाए, 115 गेंदें उन्होंने खेली। लेकिन काबिले तारीफ उनकी बल्लेबाजी थी। और जिस तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा पाकिस्तान ने उमर गुल से की थी कि स्टार्टिंग के 2 विकेट निकालेंगे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को आउट करना उनका टारगेट होगा, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। और वीरेंद्र सहवाग ने आते ही एक जबरदस्त का ब्लास्ट यहां पर किया और 4 चौके नहीं बल्कि 5 चौके एक ओवर के अंदर लगाए। हम आपको दिखाते हैं वो वीरेंद्र सहवाग के 5 चौके उस उमर गुल के ओवर में किस तरह उन्होंने उमर गुल की बखिया उधेड़ी। You want to bowl outside off stump, and I don't think that's where you should be bowling to Sehwag. And of course, if he does bowl a straight line, he's got no cover on the leg side. More runs on the onside. This time a wristy flick, the result the same. Consecutive boundaries for Virender Sehwag. Well, obviously it's not working for Umar Gul and Shahid Afridi. Crowds absolutely love it. Lovely flick shot through mid-wicket. Timing was superb, the execution was fantastic. And Pakistan and Umar Gul straight away under pressure. Again, nicely placed and timed. Exquisite timing here from Sehwag. Third boundary of the over. And all the runs on the onside. Umar Gul looks disturbed. He's trying to rehearse his bowling action. Obviously, he's bowling the wrong channel. Once again, on the pads of a master craftsman, Sehwag really will not miss those balls. This time through the offside, slower delivery, he waited on it. And gets the 4th boundary of the over. So Virender Sehwag on a roll. Flurry of boundaries. Yeah, he's dealing almost exclusively in boundaries. 5 of them have come in his 21. Sehwag takes the aerial route. One bounce over the rope. Another boundary for him, already racing away to 29. 7 boundaries for him. Problem that Razak has is that he's nowhere near as quick as Umar Gul. He's just bowling at around about 130, 132 and dead straight. Nothing happening to the ball. There's no swing, there's no seam, and that allows Sehwag just to hit through the line of the ball. Oh, that's beautifully done. That's gone for another 4. What a striker. Umar Gul is being punished, taken to cleaners. तो वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह से स्टार्ट भारत को दिया, उसी के अनुरूप बल्लेबाजी की है
सचिन तेंदुलकर ने। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन कप्तानी उनकी लाजवाब रही है इन पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, इन पूरे मुकाबलों के अंदर। अब मुकाबला जो होना है वो श्रीलंका के साथ होना है। सबसे बड़ी टीम अगर बात की जाए, जैसे पोंटिंग ने कहा था कि भारत सबसे बड़ी टीम है, लेकिन मुकाबला अब श्रीलंका से होगा। एशियाई टीम श्रीलंका है, दोनों ही एशियाई टीम है और दोनों ही मेजबान टीम है, क्योंकि ये एशिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है। और अगर हम बात करें इन दोनों टीम की, तो दोनों टीम संतुलित है। उधर श्रीलंका की बात करें तो तिलक रत्ने दिलशान सबसे ज्यादा रन बनाकर वर्ल्ड कप के अंदर पहले स्थान पर काबिज है, वहीं सचिन तेंदुलकर उनके पीछे बने हुए हैं। और अगर बात करें विकेटों की तो शाहिद अफरीदी, जो कि कल पाकिस्तान टीम बाहर हो गई थी, उन्होंने 21 विकेट लिए। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे जहीर खान, जिन्होंने 19 विकेट अब तक झटके हैं और 3 विकेट अगर वो ले लेते हैं तो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी वो जीत सकते हैं। और अगर तमाम दूसरे प्लेयर की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग भी रनों की दौड़ में है। युवराज सिंह ने अच्छी परफॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी में नहीं की, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए। You want to bowl outside off stump, and I don't think that's where you should be bowling to Sehwag. And of course, if he does bowl a straight line, he's got no cover on the leg side. More runs on the onside. बल्लेबाजी में भाग्य और गेंदबाजी में अनुशासन के अनोखे मिश्रण से भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को विश्व कप 2011 के महामुकाबले में 29 रन से जीत करके सह मेजबान श्रीलंका से खिताबी मुकाबले में भिड़ने का हक पाया है। क्रिकेट कूटनीति का गवाह बना यह मैच दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों और कई दिग्गज हस्तियों ने भी देखा। महेंद्र सिंह धोनी के रन बांकुरों ने मनमोहन सिंह और उनकी टीम में खूब जोश भरा और पाकिस्तान पर विश्व कप में अपना 100% रिकॉर्ड बरकरार रखा। भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है। 1983 के चैंपियन को दूसरी बार खिताब जीतने के लिए अब 2 अप्रैल को मुंबई में श्रीलंकाई चुनौती को तोड़ना होगा। पीसीए स्टेडियम में भाग्य भारत के साथ था। सचिन तेंदुलकर ने 4 जीवनदान और रेफरल का फायदा उठाकर 115 गेंद पर 85 रन बनाए। वीरेंद्र सहवाग ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाते हुए 38 रन बनाए। 25 गेंदों का वीरेंद्र सहवाग ने सामना किया और 8 जबरदस्त चौके लगाए। वहीं गेंदबाजी में आशीष नेहरा, जहीर खान, मुनाफ पटेल ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट झटके। India were playing at home. They were expected to make it to the final from the outset, and they've handled the pressure magnificently. And what a contest that will be, India-Sri Lanka. मोहाली इस बात का गवाह बन गया है कि भारत ने जितने भी वर्ल्ड कप में मुकाबले पाकिस्तान से खेले हैं वो उसमें जीत हासिल करने में कामयाब हुआ है। जी हाँ, मोहाली में बादशाहत भारत की कायम है और भारत ने अब तक कल के मैच को लेकर बात करें तो 5 मैच वर्ल्ड कप में खेले हैं और 5 के 5 मैच में जीत हासिल की है। वही 2020 मैच में 2 मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं। उन दोनों मैच में जो भारत है, एक तो फाइनल के अंदर जीत हासिल किया और एक लीग मैच के अंदर जीत हासिल किया। यानी कुल मिलाकर वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हैं उन सभी में जीत हासिल की है भारत ने। Umar Gul looks disturbed. He's trying to rehearse his bowling action. Obviously, he's bowling the wrong channel. Once again, on the pads of a master craftsman. Sehwag really will not miss those balls. भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान पर अपनी जीत की बादशाहत मोहाली में भी बरकरार रखी और यहां महामुकाबला 29 रन से जीतकर अपने चिर प्रतिद्वंदी पर क्रिकेट महाकुंभ में पिछले 19 साल में लगातार 5वीं जीत दर्ज की। भारत ने पाकिस्तान पर विश्व कप में जीत दर्ज करने का अभियान 1992 में शुरू किया था। तब से इन दोनों टीमों के बीच खेले गए 5 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं।